कॉरपोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का। स्वागत है माननीय कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी का, माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी का तथा माननीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्णराव करत जी का। आज भारत के माथे पर आज़ादी का 75वां सूरज जगमगा रहा है। वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के द्वारा मनाए जाने वाले आइकॉनिक सप्ताह का ये शुभारंभ है। इसी अमृतमयी भावना की चेतना मशाल आज एक साथ 75 शहरों में जगाई जा रही है। ये सप्ताह वित्तीय क्षेत्र में हमारी पहल और उपलब्धि, विकास और प्रगति का ताना बाना है, जिसमें भारतीयों के सपने बुने हैं, जिसमें शासन के संकल्प गुथे हैं। हर चुनौती से जीत जाने के हमारे इरादे डटे हैं। अब हम अनुरोध करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर टीवी सोमनाथन जी से कि कृपया स्वागत संबोधन दें। Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Finance and Corporate Affairs Minister, Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Minister of State for Corporate Affairs, Shri Rao Inderjeet Singh, Honorable Ministers of State for Finance, Shri Pankaj Chaudhary and Dr. Bhagwat Krishnarao Karat, officers of the Government of India, banks and financial institutions, representatives of the media, ladies and gentlemen. On behalf of the Ministry of Finance and the Ministry of Corporate Affairs, it is my honor and pleasure to welcome the Honorable Prime Minister of India, the Honorable Finance and Corporate Affairs Minister, the Honorable Ministers of State for Corporate Affairs and Finance to the iconic week celebrations of these two ministries. We are energized and enthused by the presence of our Honorable Prime Minister, who has motivated and guided us in evolving our fiscal policies over the past 8 years. He has inspired us to work tirelessly to ensure that enough resources are raised and deployed for the development of the nation, and particularly for the benefit of the poor and the vulnerable. The Honorable Finance and Corporate Affairs Minister has provided us constant leadership in ensuring that we do our utmost to fulfill the ambitious goals of the government. Our Honorable Ministers of State have provided continuous guidance and encouragement. Today's function marks the start of the iconic week celebrations of the two ministries. During this week, we will attempt not only to showcase strengths and achievements, but also to solicit suggestions and ideas. Inspired by the themes of Azadi Ka Amrit Mahotsav, our aim is to fulfill the dream of good governance through new ideas for the India of 2047. During the week-long celebrations, we will undertake a wide variety of activities, some for the citizens, some for the specialists, ranging from discussions on data analytics in public procurement to children's games on taxation and its importance in nation building. Honorable Prime Minister, we are deeply honored to have your august presence today. We will spare no effort to try and live up to your very high expectations. I once again welcome you and our honorable ministers and everyone present here. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर टीवी सोमनाथन जी। हमें बेहद खुशी है कि आज हम इस वक्त वेब द्वारा 75 लोकेशन से जुड़े हुए हैं। और ये देखिए, कुछ लोकेशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है लखनऊ, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पूज्य बापू का ये प्रिय भजन न्यू इंडिया के आइडिया ऑफ इंडिया का मंत्र बन गया। सुशासन का इंस्टीट्यूशन तथा वित्तीय समावेशन का मिशन है हमारा न्यू इंडिया। नेतृत्व की प्रेरणा से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थचक्र को आगे बढ़ाने में सारथी की भूमिका निभाई और हमें विजयी बनाया। कोविड आपदा में तो हमारे वित्तीय क्षेत्र के सेनानी बिना थके डटे रहे ताकि नागरिकों को सेवाएं बिना रुके मिलती रहें।
और अब जिस डिजिटल एग्जीबिशन का शुभारंभ होने जा रहा है, उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो सभी लोग जो 75 लोकेशंस के द्वारा हमसे इस वक्त कनेक्टेड हैं। अब हम विनम्र विनती करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया डिजिटल एग्जीबिशन का शुभारंभ अपने कर कमलों द्वारा करें, रिमोट का बटन दबाकर। ತಿರುವಳ್ಳುವರ್ जी ने लिखा है, புத்தியுலகத்தும் ஈண்டும் பெறலரிதே ஒப்புரவின் நல்ல பிற। स्वर्ग और धरती पर मानव सेवा से बेहतर कर्म खोजना कठिन है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय देशवासियों की सेवा का उनका उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय सुशासन और लोक कल्याण की भावना को लेकर इन सिद्धांतों और पहलों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहला, प्राथमिक नीतियों में ऐसे बदलाव लाए जाएं जो बजट संबंधी प्रक्रियाओं की कार्यक्षमता बढ़ाएं। बजट घोषणा की तारीख को अग्रिम रूप से 1 महीने से घटाया। रेलवे बजट को मुख्य बजट से जोड़ा गया। प्लान और नॉन प्लान व्यय का विलय किया गया। इस तरह सूक्ष्म पर जरूरी बदलाव लाए गए। दूसरा, सरकार की जिम्मेदारी यह है कि वह कमजोर की सहायता करे और उन्हें वित्तीय धाराओं से जोड़े। इसी सोच ने आकार दिया विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना को। जन धन योजना के जरिए करोड़ों देशवासियों के बैंक खाते खोले गए, जिससे जैम यानी जन धन, आधार और मोबाइल को एक साथ जोड़कर डीबीटी के जरिए करोड़ों खातों में सीधे लाभ पहुंचाया गया, जिसकी वजह से कोविड महामारी के समय राष्ट्र अपने नागरिकों की तुरंत सहायता कर पाया और हर एक देशवासी की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके लिए कम प्रीमियम पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। कमजोर वर्गों के लिए अटल पेंशन योजना शुरू की गई। तीसरा, काले धन और भ्रष्टाचार के लिए देश में कोई जगह नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री ने समय समय पर इस पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने नोटबंदी का ठोस कदम उठाया ताकि देश से काला धन मिटे और देश की अर्थव्यवस्था नियमित रूप से बढ़े। आगे देश को काले धन के विरुद्ध लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय संधियों और नए नियमों का साथ मिला। चौथा, डिजिटल अपनाओ, नकद लेन देन में कमी लाओ और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाओ। नोटबंदी से डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिला। भारत के स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम से आज भारत डिजिटल भुगतान में विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन चुका है। डिजिटल विकल्पों को भुगतान में ही नहीं बल्कि वित्त, कर और कंपनी संबंधी कानूनी कार्यों के लिए भी मान्यता मिल गई है। पांचवा, देश के कायाकल्प के लिए बड़े बदलाव जरूरी हैं और इस सोच का परिणाम है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें बढ़त और सकारात्मक नतीजे लगातार प्राप्त हुए हैं और इसे अभूतपूर्व गति से देश में आधुनिक आधारभूत ढांचों का निर्माण हो रहा है और करोड़ों देशवासियों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। जीएसटी को लागू करने में दोहरी रणनीति अपनाई गई। प्रक्रिया को आसान बनाया गया। गैर जरूरी व्यय और धोखेबाजी पर नकेल कसी गई। नतीजा, टैक्स भागीदारी को बढ़ावा। छठवां, राज्यों की अहम भूमिका को सराहना और उनकी वित्तीय सेहत में सुधार लाना। केंद्र ने राज्यों का हिस्सा बढ़ा दिया। सातवां, मौजूदा संस्थानों को मजबूती और नए संस्थानों व सेवाओं का निर्माण। विकास और नियमों के दोहरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई नई पहलें शुरू की गई। जब कोविड का प्रकोप फैला तब डर का माहौल था। ऐसे में व्यय कार्य को जरूरी सेवा के अंतर्गत लाया गया ताकि भुगतान में कोई बाधा न आए। आपातकालीन सेवाओं को एक साथ जोड़ा गया।
नियमों में छूट दी गई ताकि कोविड संबंधी जरूरी सेवाओं और सामग्रियों की कमी ना हो। पुनर्वास के लिए पैसों की गति को रुकने ना दिया गया। वैक्सीन निर्माण, खरीद और संचालन के लिए पूंजी उपलब्ध कराई गई। एमएसएमईज को गारंटी स्कीम का अधिकतम लाभ मिला। माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में एक अनोखी पहल आत्मनिर्भर पैकेज की शुरुआत की गई, जिसका मूल्य लगभग 21 लाख करोड़ रुपए था। कोविड के दौरान कई बुद्धिजीवियों की ये राय थी कि इस महामारी का असर भारत में लंबे समय तक रहेगा, पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस स्थिति पर मजबूती से काबू पाया गया। IMF और विश्व बैंक ने घोषित किया है कि इस साल अन्य बड़े अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ेगी। इन प्रयासों का लक्ष्य है जनता की समृद्धि। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक श्रीमद राजचंद्र के शब्दों में, भाग्यशाળી हो तो तेना आनंदમાં બીજાને ભાગ્યશાળી કરજો। अपनी समृद्धि की खुशी में औरों को समृद्ध बनाइए। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आइए अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। ये सफर है वित्तीय सेवाओं के विकास का। आज से 75 साल पहले 1947, गुलामी के अंधकार के बाद आजादी की उजली सुबह। लेकिन देश मुश्किल हालात से गुजर रहा था। और आज जब पूरा देश अर्थव्यवस्था में जीवंतता और वित्तीय समावेशन का पर्व मना रहा है, गर्व है हमें हमारे नागरिकों पर, जन भागीदारी के उनके जज्बे पर। रुपया का रोचक सफर। आइए देखते हैं ये फिल्म। भारत का आर्थिक इतिहास है तो बहुत पुराना। सोने की चिड़िया कहते थे सब, था वो भी एक जमाना। कई विदेशी शासक आए, कर दिया बुरा हाल। धन दौलत सदियों लूट के देश को किया कंगाल। आजादी का गर्वित पर्व जब 1947 में आया, रुपए का रोचक सफर वास्तव में तब शुरू हो पाया। बैंक और बीमा के विस्तार से आर्थिक उत्थान हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर निजी बचत का व्यापक माहौल बना। समय के साथ एक दृढ़ संकल्प लिया गया देश परिवर्तन का। आर्थिक समृद्धि हेतु वित्तीय समावेश था मूल आधार जिसका। जन धन योजना ने जन जन का खाता खुलवाया। बीमा योजनाओं ने जन जीवन को सुरक्षित बनाया। किसान क्रेडिट कार्ड ने किसानों को भरोसा दिलाया। आसान ऋण ने छोटे व्यवसायियों में साहस जगाया। व्यापक सहकारी आंदोलन से हुआ ग्रामीण विकास। मूलभूत एवं कृषि सुविधाओं से फैला खुशहाली का प्रभास। आवास ऋण ने करोड़ों का घर बसाकर खुशियों के साथ बढ़ाया उनका जीवन स्तर। औद्योगिक ऋणों ने देश को सक्रिय प्रगति दी। सहायक नीतियों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़त मिली। पैसों की डिजिटल स्वरूप से लेन देन बना आसान। डीबीटी ने तुरंत पहुंचाया सीधे खाते में मान। इन प्रयासों ने कायाकल्प किया देशवासियों के जीवन का। जन भागीदारी ने इस सफर में निभाई एक अहम भूमिका। आजादी के 75वें वर्ष पर हमारा शत शत नमन नागरिकों को, जिन्होंने दी ताकत अर्थव्यवस्था को, मनोबल वित्तीय संस्थाओं को।
सोने की चिड़िया था नहीं, सोने की चिड़िया है भारत, अब ये दुनिया को बताना है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगले हफ्ते तक ये फिल्म 11 अन्य भारतीय भाषाओं में भी रिलीज हो जाएगी। 130 करोड़ भारतीयों के मन मस्तिष्क में, हृदय में अंकित हो गई है आजादी के अमृत महोत्सव की भावना। अंकित हो गया है उसका चित्र। रोजमर्रा का हमारा जीवन जिस चीज से जुड़ा है वो है सिक्का। आजादी के अमृत महोत्सव ने जो अमिट छाप छोड़ी है हर भारतीय के मन में, उसी प्रतीक चिन्ह, उसी भाव को समेटे 5 सिक्कों का आज विमोचन किया जाएगा, जो बैंक नोट्स तथा कॉइन्स के विकास का भी प्रतीक है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया इन सिक्कों का विमोचन करें अपने कर कमलों द्वारा। ये सिक्के हैं 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के, और ये दृष्टि बाधितों के लिए भी यूजर फ्रेंडली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हम अनुरोध करते हैं माननीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से कि कृपया हम सबको संबोधित करें। Namaskar. Respected Prime Minister, my colleagues in the Council of Ministers, secretaries, CBIC and CBDT board members, senior government officials, those present in this hall and those who are in the adjacent hall as well, and the media, and those who are connected with us from 75 different centers. Let me start by thanking the Honorable Prime Minister for sparing this morning to be with us when we are starting to celebrate in this coming week the 75 years travel towards a strong new India. During this week, as was said by the Finance Secretary, we shall be recalling how each department in the Finance Ministry and also in the Corporate Affairs Ministry have served the nation and the interaction with the common people all the while. So the progress of India's economy since 1947 is being captured through various different activities, some of which will be milestone events which are being recalled, and there are also dedications such as iconic museums and so on. But the emphasis is to have people-to-people contact, build awareness on what the Finance Ministry and the Corporate Affairs Ministry have done in these 75 years, and more particularly what they have done during these last 8 years under the leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. The story of the financial inclusion has been captured in this video which has been shown to us, and the impact of such a financial inclusion has only resulted in greater coverage of credit for common citizens, so that even without such properties which have to be given as security, they are able to get credit from the banks, get regulatory clearances, and also be able to do their own businesses. There have been several well-designed pro-people, pro-common people programs which the Honorable Prime Minister himself has supervised over the last 8 years, the result of which is being shown through each day's activity of the Ministry of Finance and also of Corporate Affairs. Today we'll also see the Honorable Prime Minister dedicate to the nation Jan Samarth portal, which is essentially going to link common citizens to a portal through which they can avail, at least to start with, 12 government schemes, which are to give them credit through the banks, and each of these schemes, their qualifications will have all of them displayed in that one portal. This portal is going to make it easy so that
the citizen is not asked the same questions every time he has to avail himself of a government program. That is one of the things which is being dedicated today. It is Jan Samarth, but I think it is part of the Pradhan Mantri Ji's Seva for the common people, and this PM Seva for enabling and facilitating common citizen in order that he becomes part of the scheme of things which government extends for the common citizens. And therefore, such very targeted and making sure that the results are seen in the ground measures is where the last 2 years have given us good results. Common citizens have been attended to in every such way, whether it is this requirement for food security and also requirement for some money to be able to face the extraordinary circumstances which the Indian economy had to face. I am indeed thankful to the PM for having guided the ministry, particularly in these 2 years, and making sure that every scheme which has been designed is standing by the people, helping them to come out of the unprecedented challenges that we have seen in these 2 years. So this continues with the spirit with which I recall the first speech of the Honorable Prime Minister after being chosen in 2014, that this government is dedicated to the cause of the common citizen, particularly those poor, those who are backward in every way. And that spirit, Prime Minister, has ensured that all of us follow, all of us take up, and through the various government schemes, we are able to do that dedication, the seva to the common citizen, the poor citizens. Without taking much of our time, I'm again duty-bound on behalf of the entire Ministry of Finance and also Corporate Affairs to express my gratitude to the Honorable Prime Minister to be with us today, to inaugurate this week-long iconic week celebrations where we are recalling the last 75 years, India's growth towards and also a better India, towards a better India and a new India in which the inclusion philosophy is never lost, Antyodaya as we call it. And therefore, with my gratefulness being expressed to the Honorable Prime Minister, I look forward to serving along with the ministry, its officials, to fulfill all the seva objectives which are before us. And I'm indeed grateful to all the members of the ministry, the banks, the public sector undertakings, and the various departments which are so associated with the ministries, the two ministries, for having always been cooperative, extending all kinds of support in spite of challenging circumstances at home during the COVID, and being with us always to make sure the government service doesn't suffer. Thankful to all of you all as much as Honorable Prime Minister once again. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। नागरिकों को सुविधा, गरीबों के प्रति प्रतिबद्धता, वंचितों के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा, ये नए भारत की जिद है। नया भारत एक नया पोर्टल लाया है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं, बैंक्स, ऋण संस्थाओं, स्टेक होल्डर्स तथा नोडल एजेंसीज की सुविधाएं आसानी से एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। हम विनम्र अनुनय करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स को लॉन्च करें रिमोट का बटन दबाकर। मुझे भी ये लोन मिल सकता है? किससे पूछूं? मैं तो किसी को जानती भी नहीं। बिट्टू भैया, ये एजुकेशन लोन कैसे ली जाए? छोड़ो, बड़े पंगे हो। लो, अब तो सुखलाल ने भी अपना काम शुरू कर दिया।
पैसा कहाँ से आया होगा? पूछूं क्या? 130 करोड़ लोगों का देश, केंद्र सरकार की भिन्न प्रकार की योजनाएं और हर योजना के ढेरों लाभार्थी। एक तरफ पाने का इंतजार, एक तरफ देने की बेसब्री, एक तरफ डर और सवाल, एक तरफ टेक्नोलॉजी और तैयारी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता थी, जिसने देश में 45 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाए। बिना बिचौलिए उन खातों में उनके हक के पैसे पहुंचाए। योजनाओं का लाभ 100% हकदारों तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य को सार्थक करने के लिए उन्होंने देश के आगे रखा है एक बड़ा विजन, जन समर्थ। www.jansamarth.in। अब भारत सरकार के 9 मंत्रालयों की 13 सरकारी योजनाएं एक ही मंच पर, चाहे लोन हो या सब्सिडी, जन समर्थ से आप घर बैठे इन 13 योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। होम स्क्रीन पर आप लोन्स की 4 श्रेणी पाएंगे: शिक्षा लोन, कृषि लोन, छोटे उद्यमियों के लिए लोन, आजीविका लोन। भारत सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक और ऋण देने वाले अन्य कई वित्तीय संस्थानों को इस पोर्टल से जोड़ दिया है। आपको जिस बैंक से सही ब्याज दर मिले, आप उसे चुन सकते हैं। फिर कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करें और एक सरल सी प्रक्रिया के बाद ऑन स्पॉट लोन की डिजिटल मंजूरी प्राप्त करें। मतलब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। लोन सैंक्शन होने पर राशि भी सीधी खाते में आ जाएगी। इस पोर्टल की अत्याधुनिक स्मार्ट टेक्नोलॉजी आपको मार्गदर्शन देने के लिए भी सक्षम है कि आप अन्य क्या लाभ भी उठा सकते हैं। शुरुआत में 7 और बाद में अन्य भारतीय भाषाओं में आप पोर्टल को इस्तेमाल कर पाएंगे। जन समर्थ प्रधानमंत्री जी के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र के साथ गरीबों की सेवा और कल्याण के लिए बनाया गया है, जो बनेगा सरकार और लोगों के बीच का पुल और खिलाएगा करोड़ों जीवन में खुशियों के फूल। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये 8 साल आर्थिक क्षेत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाएंगे, जब भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनती जा रही है। जब भारतीय अर्थ का चक्र घूमा तो चुनौतियों को रौंद के आगे बढ़ता गया। जब धन निर्धन तक पहुंचा, तंत्र पारदर्शिता की पराकाष्ठा तक पहुंचा। हिंदुस्तान के अंतिम आदमी के मन की पीड़ा को महसूस करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों, वंचितों को आत्मसम्मान दिलाया, किसानों, छोटे कारोबारियों का आत्मविश्वास बढ़ाया, देश को आत्मनिर्भरता के पथ पर चलाया। भारतवासियों की श्रद्धा के शिखर पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हमारी विनम्र अनुनय है कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें राह दिखाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, श्री राव इंद्रजीत सिंह, पंकज चौधरी जी, श्री भागत कृष्णराव कराड़ जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, बीते वर्षों में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, उन्होंने अपने कार्य के द्वारा सही समय पर सही निर्णयों के द्वारा अपनी एक लीगेसी बनाई है,
एक बेहतरीन सफर तय किया है। आप सभी इस विरासत का हिस्सा हैं। देश के सामान्य जन के जीवन को आसान बनाना हो या फिर देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करना हो, बीते 75 वर्षों में अनेक साथियों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। ये आइकॉनिक वीक ऐसे हर साथी को, अतीत के ऐसे हर प्रयास को जीवंत करने का अवसर है। आजादी के अमृत काल में हम अपने इस अतीत से प्रेरित होकर अपने प्रयासों को और बेहतर कर सके, ये इस दिशा में बहुत अच्छा कदम है। आज यहां रुपये की गौरवशाली यात्रा को भी दिखाया गया। इस सफर से परिचित कराने वाली डिजिटल प्रदर्शनी भी शुरू हुई और आजादी के अमृत महोत्सव के लिए समर्पित नए सिक्के भी जारी किए गए। ये नए सिक्के देश के लोगों को निरंतर अमृत काल के लक्ष्य याद दिलाएंगे, उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेंगे। अगले एक हफ्ते में अनेक कार्यक्रम आपके विभाग के द्वारा होने वाले हैं। इस अमृत कार्य से जुड़े सभी विभागों को, आपकी हर छोटी मोटी इकाई को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आजादी का यह अमृत महोत्सव सिर्फ 75 वर्षों का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि आजादी के हमारे नायक नायिकाओं ने आजाद भारत के लिए जो सपने देखे थे, उन सपनों को सेलिब्रेट करना, उन सपनों को परिपूर्ण करना, उन सपनों में एक नया सामर्थ्य भरना और नए संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का यह पल है। आजादी के लंबे संघर्ष में जिसने भी हिस्सा लिया, उसने इस आंदोलन में एक अलग डायमेंशन को जोड़ा, उसकी ऊर्जा बढ़ाई। किसी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, किसी ने अस्त्र शस्त्र का रास्ता चुना, किसी ने आस्था और अध्यात्म का रास्ता चुना, तो किसी ने इंटेलेक्चुअली आजादी की अलग को जगाने में अपनी कलम की ताकत का उपयोग किया। किसी ने कोर्ट कचहरी में मुकदमे लड़कर के देश की आजादी में एक नई ताकत भरने का प्रयास किया। इसलिए आज जब हम आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, तो प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वो अपने अपने स्तर पर अपना कोई विशिष्ट योगदान राष्ट्र के विकास में जरूर जोड़े। आप देखिए, अगर हम राष्ट्र के तौर पर देखें तो भारत ने बीते 8 वर्षों अलग अलग आयामों पर नित्य नूतन कदम उठाए हैं, नवीन काम करने का प्रयास किया है। इस दौरान देश में जो जनभागीदारी बढ़ी, उन्होंने देश के विकास को गति दी है, देश के गरीब से गरीब नागरिक को सशक्त किया है,
स्वच्छ भारत अभियान ने गरीब को सम्मान से जीने का अवसर दिया। पक्के घर, बिजली, गैस, पानी, मुफ्त इलाज जैसी सुविधाओं ने हमारे गरीब की गरिमा बढ़ाई, हमारे नागरिकों के आत्मविश्वास में एक नई ऊर्जा भर दी और साथ साथ सुविधा भी बढ़ाई। कोरोना काल में मुफ्त राशन की योजना ने 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को भूख की आशंका से मुक्ति दिलाई। देश के आधे से अधिक आबादी जो देश के विकास के विमर्श से, फॉर्मल सिस्टम से वंचित थी, एक्सक्लूडेड थी, उसका इंक्लूजन हमने मिशन मोड पर किया। फाइनेंशियल इंक्लूजन का इतना बड़ा काम इतने कम समय में दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात, देश के लोगों में अभाव से बाहर निकलकर सपने देखने और सपनों को साकार करने का नया हौसला हमें देखने को मिला। साथियों, आजादी के 7 दशक बाद ये जो इतना बड़ा परिवर्तन आया है, उसके केंद्र में पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस का लगातार प्रयास है। एक समय था जब हमारे देश में नीतियों और निर्णय गवर्नमेंट सेंट्रिक होते थे, यानी किसी योजना के शुरू होने के बाद ये लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो सरकार तक पहुंचकर उसका लाभ उठाएं। इस तरह की व्यवस्था में सरकार और प्रशासन दोनों की ही जिम्मेदारी कम हो जाती थी। अब जैसे किसी गरीब छात्र को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद की जरूरत होती थी, तो पहले वो अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों या फिर दोस्तों से मदद लेने के लिए मजबूर था। इसी काम के लिए सरकार की जो भी योजनाएं थी, उसमें इतनी ज्यादा प्रक्रियाएं होती थी कि वो उस मदद को पाने के लिए आगे ही नहीं बढ़ता था। उस प्रक्रिया में ही थकान महसूस करने लग जाता था। इसी तरह अगर किसी एंटरप्रेन्योर, किसी व्यापारी, कारोबारी को लोन की जरूरत होती थी, तो उसे भी अनेक जगह चक्कर लगाने पड़ते थे, अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। अक्सर ये भी होता था कि अधूरी जानकारी की वजह से वो मंत्रालय की वेबसाइट तक भी नहीं पहुंच पाता था। ऐसी मुश्किलों का नतीजा ये होता था कि छात्र हो या व्यापारी अपने सपने बीच में ही छोड़ देता था, उन्हें पूरा करने के लिए कदम ही नहीं उठाता था। पहले के समय गवर्नमेंट सेंट्रिक गवर्नेंस का देश ने बहुत बड़ा खामियाजा उठाया है, लेकिन आज 21वीं सदी का भारत पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस के अप्रोच के साथ आगे बढ़ा है। ये जनता ही है जिसने हमें अपनी सेवा के लिए यहां भेजा है। इसलिए हमारी ये सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम खुद जनता तक पहुंचे, हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना, उसे पूरा लाभ पहुंचाना, ये दायित्व हम पर है। अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग वेबसाइटों के चक्कर उसे लगाने से बेहतर कि वो भारत सरकार के एक पोर्टल तक पहुंचे और उसकी समस्या का समाधान हो। आज जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो इसी लक्ष्य के साथ बढ़ाया गया है। अब भारत सरकार की सभी क्रेडिट लिंक स्कीम्स अलग अलग माइक्रो
साइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। इस जन समर्थ पोर्टल छात्रों का, एंटरप्रेन्योर्स का, व्यापारियों, कारोबारियों का, किसानों का जीवन तो आसान बनाएगी ही, उन्हें अपने सपने पूरे करने में भी मदद करेगा। अब छात्र आसानी से जानकारी ले पाएंगे कि कौन सी सरकारी योजना का उन्हें सबसे ज्यादा लाभ होगा, वो कैसे उसका फायदा उठा सकता है। इसी तरह हमारे युवा आसानी से ये तय कर पाएंगे कि उन्हें मुद्रा लोन चाहिए या स्टार्टअप इंडिया लोन चाहिए। जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से अब देश के युवाओं को, मध्यम वर्ग को एंड टू एंड डिलीवरी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। और जब लोन लेने में आसानी होगी, कम से कम प्रक्रियाएं होगी, तो ये भी स्वाभाविक है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने के लिए आगे आएंगे। ये पोर्टल स्वरोजगार को बढ़ाने में, सरकार की योजनाओं को सभी लाभार्थियों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाला है। मैं जन समर्थ पोर्टल के लिए देश के युवाओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। आज यहां इस कार्यक्रम में बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज भी मौजूद हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि सारे बैंकर्स भी जन समर्थ पोर्टल को सफल बनाने के लिए, युवाओं को लोन मिलना आसान बनाने के लिए अपनी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। साथियों, कोई भी सुधार हो, रिफॉर्म हो, अगर उसका लक्ष्य स्पष्ट है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर गंभीरता है, तो उसके अच्छे नतीजे भी आना तय है। बीते 8 वर्षों में देश ने जो रिफॉर्म किए हैं, उनमें बड़ी प्राथमिकता इस बात की को भी दी गई है कि हमारे देश के युवाओं को अपना सामर्थ्य दिखाने का पूरा मौका मिले। हमारे युवा अपनी मनचाही कंपनी आसानी से खोल पाए, वो अपने एंटरप्राइज आसानी से बन पाए, उन्हें आसानी से चला पाए, इस ओर जोर दिया गया है। इसलिए 30,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम करके 1,500 से ज्यादा कानूनों को समाप्त करके कंपनीज एक्ट के अनेक प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज करके हमने सुनिश्चित किया है कि भारत की कंपनियां न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि नई ऊंचाई को प्राप्त करें। साथियों, रिफॉर्म्स यानी सुधार के साथ ही हमने जिस बात पर फोकस किया है वो है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। केंद्र और राज्य के अनेक टैक्सों के जाल की जगह अब जीएसटी ने ले ली है और इस सिंप्लीफिकेशन का नतीजा भी देश देख रहा है। अब हर महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से रुपए के पार जाना सामान्य बात हो गई है। ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन की संख्या में भी हम लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं। सुधार, सरलीकरण से आगे बढ़कर अब हम सुगम व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। जेम पोर्टल की वजह से एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्राइज के लिए सरकार के अपना प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान हो गया है। इसमें भी खरीद का आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर रहा है। आज देश में निवेश करने के लिए कहां कहां संभावनाएं हैं, वो जानकारी इन्वेस्ट इंडिया पोर्टल के माध्यम से आसानी से उपलब्ध है। आज अनेक तरह की क्लियरेंसेस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल है। इसी कड़ी में ये जन समर्थ पोर्टल भी देश के युवाओं, देश के स्टार्टअप्स को बहुत मदद करने वाला है। आज हम सुधार, सरलीकरण, सुगमता की शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो सुविधाओं का नया स्तर प्राप्त होता है। सभी देशवासियों को आधुनिक सुविधाएं देना, उसके लिए नित नए प्रयास करना, नए संकल्प लेकर उन्हें सिद्ध करना हम सभी का दायित्व है। साथियों,
बीते 8 वर्षों में हमने दिखाया है कि भारत अगर मिलकर कुछ करने की ठान ले तो वो पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन जाता है। आज दुनिया सिर्फ एक बड़े कंज्यूमर मार्केट के रूप में ही नहीं बल्कि एक समर्थ गेम चेंजर क्रिएटिव इनोवेटिव इकोसिस्टम के रूप में आशा और अपेक्षाओं से हमारी तरफ आज दुनिया देख रही है। दुनिया के एक बड़े हिस्से को भारत से समस्याओं के समाधान की अपेक्षाएं हैं। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 सालों में हमने सामान्य भारतीय के विवेक पर भरोसा किया। हमने जनता में ग्रोथ में इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट्स के रूप में प्रोत्साहित किया। हमें देश की जनता पर पूरा विश्वास रहा है कि जो भी टेक्नोलॉजी सुशासन के लिए लाई जाएगी उसे देश की जनता स्वीकार करेगी और सराहेगी भी। इसी जन विश्वास का परिणाम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के रूप में सबके सामने है। आज दूर सुदूर गांव से लेकर शहरों के मोहल्लों में रेडी ठेले पर भी 10-20 रुपये से लेकर लाखों के ट्रांजैक्शन देशवासी इस पर आसानी से कर रहे हैं। हमें भारत के युवाओं में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर जो जुनून है उस पर भी बहुत अधिक विश्वास था। देश के नौजवानों में छुपे इस जुनून को रास्ता देने के लिए स्टार्टअप इंडिया का प्लेटफॉर्म दिया गया। आज देश में लगभग 70,000 स्टार्टअप्स हैं और हर रोज इसमें दर्जनों नए सदस्य जुड़ रहे हैं। साथियों, आज देश जो हासिल कर रहा है उसमें बहुत बड़ी भूमिका स्वप्रेरणा की है, सबके प्रयास की है। देशवासी आत्मनिर्भर भारत अभियान से, वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों से भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं। इसमें अब आप सभी की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की भूमिका बहुत बढ़ गई है। अब हमें योजनाओं के सैचुरेशन तक तेजी से पहुंचना है। हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। अब हमें इनके सदुपयोग को लेकर जागरूकता बढ़ानी है। जो फाइनेंशियल सॉल्यूशन भारत के लिए तैयार किए हैं वो अब दुनिया के दूसरे देशों के नागरिकों को भी समाधान दे, इसके लिए भी प्रयास होना चाहिए। हमारे बैंक, हमारी करेंसी इंटरनेशनल सप्लाई चेन का, इंटरनेशनल ट्रेड का व्यापक हिस्सा कैसे बने, इस पर भी फोकस जरूरी है। मुझे विश्वास है कि आजादी के अमृत काल में बेहतर फाइनेंशियल और कैपिटल कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आप निरंतर प्रोत्साहित करते रहेंगे। आज इस समारोह के लिए और 75 स्थान पर जो भी साथी बैठे हैं इन सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।